विद द पेयर एक्ट। लेकिन सर इन्होंने क्या चेंज किया, इन्होंने ये चेंज किया है सर कि दे mainly the major change there are several sections, look at me, which were declared unconstitutional by the honorable supreme court, they are removed from the bns, like sir, like supreme court ने बोला ना 124 एक एप्लीकेशन अभी रोको जब तक कोर्ट सुन ना ले, हमने उसको हटा दिया, एक नया सेक्शन ले आए। हालांकि हमने बोला ना कि 377, 377, what if this it was the unnatural offenses in the case of Joseph Sain versus Union of India. Which case? Sorry, Navtej Singh Johar versus Union of India. In the case of Navtej Singh Johar versus Union of India, it was declared partly unconstitutional. It is no longer in the BNS. अब ये BNS में नहीं है. There is a section 498, ठीक है, 497, that is the basically adultery. Adultery. In the case of Joseph Sain versus Union of India, adultery was declared unconstitutional. हमने adultery भी हटा दिया, हमने sedition हटा दिया, हमने adultery हटा दिया, हमने unnatural offenses हटा दिए, हमने 309 attempt to suicide हटा दिया. We removed 309, we removed 377, we removed 497, we removed 124A. And all the sections which were declared unconstitutional, that is repealed from your BNS. तो ये काम किया हमने. क्या insert किया? We inserted a very new type of punishment, that is there is a section 4. There is a section 4. What if the section 4? सबसे major sir. What if the major changement in your as in the BNS? तो मैंने कहा जो सबसे बेहतर changement है, that is the introduction of new type of punishment, that is the community service. मैंने क्या बोला? What the major changement, that is the introduction of new type of punishment, that is the community service. Earlier we have section 53 in your IPC. क्या था 53 में? प्री में बार बार पूछा जाता था. There is a 5 type of punishment. Which one? Death, life imprisonment, imprisonment of either description, simple or rigorous, forfeiture of property, and fine. But now, according to BNS, we have 6 type of punishment. Sixth one is 4F, that is the community service. That is the community service. Sixth one is community service. That is very important. Sir, what is the community service? In the year 1997, Law Commission of India suggested to introduce this type of punishment. Hollywood movies देखते हैं आप? Hollywood movies, यूरोपियन मूवीज कई देखते होंगे, वहां पर आप क्या देखते हैं कि जज साहब ने पनिश किया है और वो बंदा हॉस्पिटल में स्वीपिंग कर रहा है. Basically, he was punished with the community service. Serve the community as a punishment without any remuneration. This is your punishment. ठीक है, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो community service is a type of punishment to serve the community without any remuneration as a punishment. मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, in the year 2002, Justice Malimat Committee report suggested. Which committee report? Malimat Committee report suggested to introduce, which was the one of the biggest committee on the criminal law reform. Malimat Committee report suggested, dear Malimat Committee report suggested to introduce this type of punishment which is known as community service. But हमने उसको लेकर नहीं आए. ठीक है, but now in your BNF there is a community service. So look at me, this is the one of the most phenomenal change made in the BNF, that there is a new type of punishment that is known as the community service. बहुत बेहतर चेंजमेंट है. क्यों, ऐसा क्यों है सर? Now for every petty offenses no need to go to the jail. Why? We are running under the reformative criminal justice system. reformative criminal justice system है ना? तो प्यारे बच्चे, वी आर रनिंग अंडर द रिफॉर्मेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. अब पहले हम क्या कहते थे? लुक एट मी. पहले हम क्या कहते थे? पहले हम कहते थे ना, चोरी चाहे 50 रुपीज की करो या 50 लाख की करो, चोरी तो चोरी है. लेकिन अब ऐसा नहीं है, बिकॉज वी हैव अ कम्युनिटी सर्विस. कहाँ एग्जाम्पल दो सर इसका कुछ? क्या, कब, कहां पर कम्युनिटी सर्विस है? लाइक इफ यू कमिटेड थेफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 5,000 रुपीज,
First time offender under the value of 5,000 rupees, or plus you restore that property. You restore that property, then you will be punished by the community service, not by the imprisonment. If you are a person creating outcry outside the road, on the road, then you will be punished by the community service. In some kind of defamation, you will be punished by the community service. You are a public servant, you are running your own trade secretly, you will be punished by the community service. So what is the impact? Main impact is, for every kind of petty offenses which is very small in nature, no need to go to the jail. Now we have a punishment, new type of the punishment, community service. Community service क्या है? This is a type of punishment to serve the committee without any remuneration. This is the major changement here. This is the major changement. Okay. और क्या है? We have section 69. Which section? We have section 69. What is the section 69? Section 69 is very important. Why are we discussing section 69? Because it was in the news. It was in the news ki now promise of marriage, and after denial from the marriage, having sexual intercourse on the basis of promise of marriage is now offense. So dear students, section 69 covers two aspects. Number one, if you use any deceitful means to have the sexual intercourse, मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा, मैं तुम्हें जेल में छुड़वा दूंगा. Anyone, any deceitful means to have the sexual intercourse, and then that is punishable according to section 69. Plus दूसरी बात, if someone is promising for the marriage without intent of marriage, on the basis of that promise there is a sexual intercourse, it will be punished by the section 69. It will be punished by the section 69. तो बड़ा डिबेट में रहा कि सर it will be misused grossly. Misused grossly. तो मैंने कहा ऐसा नहीं है. Earlier there was a Deepak Gulati case in which Honorable Supreme Court said, if there is no intent from the beginning of marriage, promise of marriage only for the purpose of sexual intercourse, that is amounts to the rape. Now we drafted this and put into the section 69. Situation was quite same prior to this legislature effort. पहले भी यही था. But now, if there is a promise of marriage without intent to marriage, just to have the sexual intercourse, that is now punishable. There is section 95. Have you watched the movie Master? Master movie देखी है आपने? विजय की? South की movie है. The main plot of that movie, there was a hardened criminal. He used juveniles who were residing in the jail. He used juveniles for committing an offense. भाई सो निर्भया रेप केस याद है? जो मेन ऑफेंडर है वो 3 साल बाद छूट गया. क्यों छूट गया? अकॉर्डिंग टू द लॉ. तो आज भी अब तो हमने स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट कर दिया. जुवेनाइल्स के लिए बड़ा कम पनिशमेंट होता था. तो ये ऑफेंडर जुवेनाइल्स को यूज करते थे ऑफेंस करने के लिए. तो नाउ वी हैव सेक्शन 95. डियर सेक्शन 95 क्या कहता है? इफ यू यूज child in any means like hire, engage, employ for committing offense, that is punishable according to the section 95. Section 95. Now we have a mob lynch provision. Now we have mob lynch provision means if some number of persons on the basis of gender, on the basis of religion, on the basis of race, caste, अगर किसी को मारते हैं लिंच करके, that is punishable. 103 subsection 2. Now we have, अच्छा अभी आपने पढ़ा होगा कि ट्रक ड्राइवर जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए. याद है आपको? याद है? वो याद है कि नहीं याद है? बोलो. 106. Now we have a very good section, that is section 106. What is the object of the 106? 106 has two parts. 106 one deals with the medical negligence, and we are discussing 106 2. This is the only section which is not came into force. Why? Because prior to the Lok Sabha election, there was a huge strike of the truck drivers. Because in this section, there is a main two languages. If you drive negligently or rashly and cause the death, and soon after the death, without informing the police or magistrate, you run away, you will be punished by the imprisonment of 10 years. बस इसी का
विरोध किया सबने, और नाउ दैट इज द ओनली सेक्शन विच इज नॉट इनफोर्स्ड। ये सस्पेंडेड है अभी, ये सस्पेंडेड है अभी। देयर इज अ 3 न्यू सेक्शन, सेक्शन 111, सेक्शन 112, सेक्शन 113। what if these sections, section 111, 12 and 13, प्यारे बच्चे, in these sections 111 is the very serious offense for the organized crime. This is the new section, organized crime. 103 is the petty organized crime and 113 is the terrorist act. ठीक है, देयर इज 3 न्यू सेक्शंस। तो बहुत सारे चेंजेस हैं, लेकिन we will discuss it one by one, but today we are going to discuss a very one important topic, और आज इसको हम पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आई वाज गिविंग द ब्रीफ दैट देयर इज अ 90% सिमिलरिटी इन आईपीसी एंड बीएनएस। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक टॉपिक तो हम अभी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ना चाहेंगे बताओ, वही पढ़ा लेते हैं। थेफ्ट पढ़ा दूं? थेफ्ट पढ़ेंगे? चलो, बच्चे ने कहा थेफ्ट पढ़ना है, आज हम ना पूरा थेफ्ट पढ़ने वाले हैं। और आज के बाद थेफ्ट, आई एम प्रॉमिसिंग टू ऑल ऑफ यू, यू विल नेवर फॉरगेट द थेफ्ट। पक्का, दिस इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, यू विल नेवर फॉरगेट द थेफ्ट। इट इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू along with the case laws if we have time। ठीक है, वंशिका कह रही सर डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, इट विल टेक टाइम वंशिका, बट प्रायर टू द थेफ्ट आई विल टेल यू 1 minute समथिंग। ठीक है, वी विल गो टू द सेक्शंस लेटर, बट एक बात वंशिका अपने दिमाग में रखो, दिस इज ओनली फॉर यू। इफ यू वांट टू मेक द डिफरेंस, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट ऑफ द बीएनएस। आई एम टेलिंग इट टू यू। व्हाई? कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर समझ में नहीं आता है, लेकिन आई एम टेलिंग इट टू यू, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट ऑफ द, वन ऑफ द मोस्ट इजी पार्ट ऑफ द बीएनएस। बट आई वुड लाइक टू टेल यू द मेन डिफरेंस बिटवीन, अगर आपसे कोई पूछे कि सर इन अ वेरी ब्रीफ वुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, तो आपका क्या जवाब होगा? इन बोथ केसेस, मर्डर में भी बंदे की जान जा रही है, कल्पेबल होमिसाइड में भी जान जा रही है। जा रही है? मर्डर में भी मेंस रिया है, यानी इंटेंशन और नॉलेज है। कल्पेबल होमिसाइड में भी मेंस रिया है कि नहीं? है कि नहीं? दोनों में बंदे मर रहे हैं, दोनों में मेंस रिया है, फिर डिफरेंस कहां है सर? यही तो क्वेश्चन आता है ना। तो प्यारे बच्चे, द मेन इन द केस ऑफ आर वर्सेस गोविंदा, जस्टिस मेलविल, कौन जस्टिस? Justice Melville first time make the difference between the culpable homicide and murder, and after the 100 year of the R versus Govinda case in the state of Andhra Pradesh versus R Punaiya case, Justice Ranjit Singh Sarkaria make the difference between culpable homicide and murder. In the both cases, Justice Melville and Justice Sarkaria said one thing, the ध्यान देना, the main difference between culpable homicide and murder is the gravity of intention and knowledge. अरे हाँ, the main difference is the gravity of intention and knowledge, because in both cases there is a death of human being, in both cases there is an intention or knowledge. The main difference is the gravity of intention and knowledge. If gravity of intention is high, that will be the murder. If gravity of intention and knowledge low, that will be the culpable homicide. बस इतनी बात याद रखो। सर एग्जांपल दे दो, व्हाट इज द कल्पेबल होमिसाइड? एक मत लूंगा बच्चों, बच्ची ने पूछा है वंशिका ने, तो उसको थोड़ा सा हिंट तो दे ही देता हूं। मैंने कहा सर एग्जांपल, इफ यू ओपन योर बेयर एक्ट, बेयर एक्ट में सारी बात छुपी है। सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड, हुएवर कॉजेस डेथ, ठीक है, बाय डूइंग एन एक्ट विथ इंटेंशन टू कॉज डेथ। 3 बातें हैं ना, इंटेंशन टू कॉज डेथ, intention to cause bodily injury likely to cause death, और knowledge that such act is likely to cause death। तो पहले पार्ट में एकदम सिमिलरिटी है, जब भी इंटेंशन होगा वो बन जाएगा मर्डर। दिक्कत कहां आई? इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी। मेरी इंटेंशन आपको बॉडली इंजरी देने की थी, लेकिन आप मर गए।
और बॉडली इंजरी थी भी ऐसी कि लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे डेथ हो सकती थी, ये कल्पेबल होमिसाइड। और मर्डर में फर्क बताऊं, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी विच इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, 101C। मतलब इधर देखो, बॉडली इंजरी थी लेकिन वो इतनी ग्रेव थी कि मौत होनी ही होनी थी, सफिशिएंट थी। ग्रेविटी बढ़ गई, ग्रेविटी बढ़ गई, ग्रेविटी बढ़ गई, बस यही तो फर्क है। यहां सफिशियंसी है, वहां लाइकली है। मौत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, यहां होके रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दैट्स इट। इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, कल्पेबल होमिसाइड। मर्डर में आओ, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी एंड ऑफेंडर नोज, ऑफेंडर की नॉलेज ने ग्रेविटी को बढ़ा दिया, इंटेंशन की ग्रेविटी को, मर्डर बन गया। इधर देखो, कल्पेबल होमिसाइड, इंटेंशन नॉलेज दैट सच एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, क्या है? कल्पेबल होमिसाइड। और मर्डर बनाना हो तो 101 का डी पार्ट क्या कह रहा है? इंटेंशन, सॉरी, नॉलेज और प्लस ऑल प्रोबेबिलिटी और प्लस इमिनेंट डेंजर और प्लस विदाउट एक्सक्यूज। नॉलेज के साथ तीन चीजें जुड़ गई, ग्रेविटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? दैट विल बी द मर्डर। तो अगर आपसे कोई ब्रीफ में पूछे वंशिका, तो आपने बताना है द मेन डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर is the gravity of intention and knowledge. If gravity is high, that will be the murder. Gravity is low, that is the culpable homicide. Now come to the topic, that is the offenses against the property. Today we are going to discuss the theft. अब रिलैक्स होके बैठ जाओ कि अभी थेफ्ट पूरा सीखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाओ। ठीक है, और बिल्कुल सुनते रहना। आज के बाद थेफ्ट में कोई डाउट नहीं आने वाला, अगर मुझे पास पूरा टाइम रहा तो। Theft is defined in a chapter which was the offenses against the property. In your BNS, theft is defined in the section 303. In your IPC, it was defined in the section 378. I would like to tell you one thing very clear. There is a no changement in the definition of theft, or even illustration is quite similar. मतलब सर, मन करे 378 पढ़ो, मन करे 303 पढ़ो, कोई चेंजमेंट बीएनएस में नहीं हुआ है। एक बात, ठीक है, कुछ भी पढ़ो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चे, व्हाट इज द थेफ्ट? तो थेफ्ट जो है प्यारे बच्चे, दिस इज द ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। इफ यू वांट टू कमिट थेफ्ट, यू मस्ट हैव 5 इंग्रेडिएंट्स। अभी मैं सेक्शन पे नहीं जा रहा, बेरेक्ट में नहीं जा रहा, पहले ही मैं इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूं अपनी लैंग्वेज में। इफ यू वांट टू कमिट थेफ्ट, नाउ इट इज डिफाइंड इन द सेक्शन 303, it is defined in the section 303 of the BNS, section 303 of the BNS. Number 2, if you want to clear what is the theft, you must have 5 ingredients in your hand. कितने इंग्रेडिएंट होने चाहिए आपके पास? 5 ingredients. How many ingredients you want? There you must have 5 ingredients. Number one, you must have dishonest intention. Dishonest intention. Number 2, you must have movable property. नंबर 3, आउट ऑफ द पोजेशन, प्रॉपर्टी किसी के पोजेशन में होनी चाहिए, वहां से आपने आउट किया है। नंबर 4, बिना उससे पूछे, विदाउट द कंसेंट यू मस्ट डू दी, विदाउट कंसेंट यू मस्ट डू दी समथिंग। नंबर 5, दैट इज दी मूविंग, प्रॉपर्टी को लेने के लिए क्या किया जाए? मूव किया जाए। बस अगर आपके पास इतने आइटम आ गए, dishonest intention, movable property, out of the possession, without consent and moving, it will cause the theft. Number 1, ठीक है। अब देखो मेरी तरफ, this is my gold pen. If you have Bayer Act, open the Bayer Act, otherwise I am going to open the Bayer Act. ठीक है, इधर Bayer Act कहाँ है? मैं Bayer Act लगा रहा हूं, उसमें से तुम देखना, ठीक है। तब तक सुनो, थेफ्ट इज वेरी इजी। सेक्शन 303 कहता है दिस इज माय गोल्ड पेन, ठीक है।
किसके पोजीशन में है? मेरे। दिस इज इन माई पोजीशन। हुएवर, हुएवर हो तुम, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। हुएवर, हुएवर, हुएवर माने आप, ठीक है, और एनी पर्सन माने मी, ठीक है। इधर देखो, इसको प्ले तो करो यार, कैसे खोलूंगा मैं, क्या कर रहे हो? लिखूंगा कहां से इसमें? चलो इधर देखो, मैंने हुएवर, हुएवर माने आप, और हूं मैं। बड़े आसान भाषा में समझना। व्हाट इफ दिस इज अ गोल्ड पेन, किसके पोजीशन में है? मेरे। दिस इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, नंबर टू, आउट इन माई पोजीशन, नंबर टू, ठीक है। आप अगर दिस मूवेबल प्रॉपर्टी को विदाउट माई कंसेंट मेरी पोजीशन से मूव करते हैं विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, इट विल कॉज द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। ओपन सेक्शन 303 ऑफ योर बीएनएस एक्ट, ठीक है, और उसको वन बाय वन करके हम कवर करने वाले हैं। हाँ देखो, दिस इज द सेक्शन 303। चलो, ये रहा थेफ्ट। लुक एट मी, इधर देखो, मैंने क्या बोला था? देयर इज अ 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द थेफ्ट। व्हाट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स? मूवेबल प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, आउट ऑफ द पोजीशन, मूविंग और विदाउट कंसेंट। ये सारे हमने यहां से निकाले। सेक्शन 303 डिफाइंस द थेफ्ट। हूएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है क्या? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द possession, ठीक है ना, विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन such order to such taking is said to commit theft. According to definition, whoever intending to take dishonestly, आप और मैं, this is my gold pen, whoever माने you, intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person माने me without my consent, you move that property for what? In order to such taking, that is the offense of theft. यानी अगर there is a 5 ingredients of the theft: movable property, dishonest intention, out of the possession, without consent and moving, अगर 5 की पांचों मिल गई, that will amount to the theft, otherwise not, otherwise not. Are you getting my point on? Look at me, बड़े ध्यान से सुनना। You came near to me, sir, I have a question. मैंने कहा please ask. You are asking to me a question. We are using the same phone. आपका भी वही फोन है, मेरा भी वही है। क्वेश्चन पूछ के जब आप जा रहे थे तो आपने, आपको लगा ये आपका फोन है और आपने ये उठा लिया और लेकर के चले गए, ठीक। दिस इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट वॉज माई पोजेशन, यू आस्क इट टू मी रिगार्डिंग ड्यूरिंग टेकिंग, नो, विदाउट कंसेंट, you move that property, whether it is a theft or not, whether it is a theft or not. No, there was one element missing, that was the dishonest intention. So you must satisfy all the 5 ingredients for the theft. एक भी कम पड़ा तो टेकिंग नहीं है। तो we must have Recording stopped. element. How many elements are there? Recording in progress. 5 elements. Number 1, dishonest intention. Dishonest intention. Number 2, movable property. Number 3,
out of the possession. Number 4, without consent. Number 5, that is the moving. That is the moving. Clear? अब एक एक करके सारे एलिमेंट्स को खोलते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दी डिसऑनेस्ट इंटेंशन. डिसऑनेस्ट intention. Sir, what is the dishonest intention? Look at me. For the basic principle of crime, that is the principle of mens rea, the actus non facit reum nisi mensit rea. What? Actus non facit reum nisi mensit rea. What it means, sir? It means nothing is an offense which is done without guilty mind. What it means, sir? Nothing is an offense which is done without guilty mind. It means nothing is an offense which is done without guilty mind. Number 1, मतलब if you want to commit offense, you must have your guilty mind. मतलब कि मेंस रिया होना जरूरी है. Common intention denotes the मेंस रिया. ऑफेंस कैसे होता है? मेंस रिया प्लस एक्टस रियस इज अमाउंट्स टू द क्राइम. व्हाट इज द एक्टस रियस? दैट इज द फिजिकल कंडक्ट. मुझे तुम्हारी घड़ी अच्छी लग रही है, मुझे इसको चोरी करना है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, ये है मेंस रिया. तुम्हारे हाथ से घड़ी निकाल ली, ये है एक्टस रियस. एक्टस रियस इज नथिंग, दैट इज मेयरली फिजिकल कंडक्ट. तो ये क्या है? मेंस रिया. यानी विदाउट इन डिसऑनेस्ट इंटेंशन थेफ्ट हो ही नहीं सकता. आप अभी मेरा फोन ले गए थे, अभी ले गए थे, थेफ्ट हुआ क्या? नहीं, बिकॉज देयर वाज नो dishonest intention. What is the meaning of dishonestly? Dishonestly means wrongful gain to one person, wrongful gain to one person, or wrongful loss to another. दो बातें. wrongful gain to one person, wrongful loss to another. There is a two elements of the dishonestly. ठीक है. तो इट इज क्वाइट क्लियर कि यू मस्ट हैव डिसऑनेस्ट इंटेंशन. नंबर 1, डिसऑनेस्ट इंटेंशन. इतनी बात क्लियर हो गई? बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं. द व्हाट इज द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट? दैट इज द मूवेबल प्रॉपर्टी. दैट इज द मूवेबल प्रॉपर्टी. इसका क्या मतलब है? इफ यू वांट टू कमिट थेफ्ट, प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल. मतलब इफ प्रॉपर्टी इज इमूवेबल, यू कैन नॉट कमिट. ये घर चुरा सकते हैं आप? चुरा सकते हैं? नहीं. यू कैन ओनली कमिट द थेफ्ट विद द मूवेबल प्रॉपर्टी. ओनली कमिट थेफ्ट विद द मूवेबल प्रॉपर्टी. सिर्फ तभी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, तभी आपका थेफ्ट होगा, अदरवाइज नॉट. सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी ही सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट हो सकती है. लाइक माई पेन, लाइक माई वॉच, लाइक योर फोन. The third thing is, यहां फोकस करना है और यही समझने वाली बात है. Dear students, please focus. What was the third element? Out of the possession. बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसको. Out of the possession. That is very important. You must understand the possession. Now focus on me. बहुत ध्यान से सुनो. Theft has been enacted to protect the possession rather than the ownership. सर समझ में नहीं आया, मैंने कहा फिर बताता हूँ. Theft has been enacted to protect the possession rather than the ownership. सर एक्सप्लेन करो. मैंने कहा ऑनरशिप से लेना देना ही नहीं है. Theft is the offense against the possession. इसका मालिक कौन है, इससे लेना देना ही नहीं है. किसके पोजीशन में है, इससे लेना देना है. इसीलिए थेफ्ट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो पॉसिबल. तो मैंने क्या बोला? थेफ्ट इज टू प्रोटेक्ट दी पोजेशन, नॉट दी ऑनरशिप. दैट्स व्हाई इवन ऑनर में बी लायबल फॉर द थेफ्ट ऑफ ओन प्रॉपर्टी. मैंने अपनी वॉच बनने के लिए एक शॉप में दी, पेमेंट किए बगैर डिसऑनेस्ट इंटेंस के साथ मूव कर लाया वॉच को, मैंने थेफ्ट कर दिया. जबकि घड़ी कौन और कौन? मैं. बिकॉज थेफ्ट इज दी intent to protect the possession, not the ownership. That's why theft of own property is also possible.
सर पोजेशन सी के अगेंस्ट ऑफेंस है। मैंने कहा यस सर, वुड यू प्लीज एक्सप्लेन पोजेशन। अगर ये पॉइंट समझ गए, थेफ्ट में कुछ है ही नहीं, क्योंकि डेफिनेशन तो ऑलरेडी याद करा ही चुका हूं। हूएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking that is amount to the theft। अगर ये पॉइंट समझ गए, कहानी खत्म। तो मैंने क्या कहा, थेफ्ट इज बेसिकली इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट दी पोजेशन नॉट दी ओनरशिप। मालिक कौन है इससे कोई लेना देना नहीं। दैट्स वाई प्यारे बच्चे, इवन ऑनर में बी लायबल फॉर द थेफ्ट ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी। वॉच वाला एग्जांपल दिया कि नहीं दिया? अब बात ध्यान से सुनना। सर एक बात बताओ, मैंने एक बात पूछो, थेफ्ट इज द ऑफेंस अगेंस्ट द पोजेशन। ठीक, मैंने कहा मेरा एक नौकर है, सर्वेंट है। मैंने कहा ओके, आई वन डे आई गेव माई बाइक टू हिम कि गो टू द मार्केट एंड टेक द वेजिटेबल्स। वो मार्केट गया सब्जी लाने के लिए। बाइक तो मेरी किसके पोजीशन में है? सर्वेंट के। वो लेके भाग गया। थेफ्ट कहाँ हुआ सर? वो तो उसी की पोजीशन में थी। मैंने कहा वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने कहा प्यारे बच्चे, देयर इज टू टाइप ऑफ पोजीशन, इज योर पोजीशन एंड डी फैक्टो पोजीशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये उसमें डायरेक्ट मैंने लिखा है, दैट इफ द इज योर पोजीशन एंड डी फैक्टो पोजीशन। आई इनवाइटेड यू माई हाउस, कम टू माई हाउस, हैव अ डिनर। आप मेरे घर आए, मैंने आपको एक सोने की चाय में प्याले में चाय दी। ठीक, आपने प्याला ले लिया, प्याला इन योर हैंड। किसके पोजीशन में है प्याला? जिसके हाथ में। देयर इज अ टू टाइप ऑफ पोजीशन, डिजोर पोजीशन, डिफैक्टो पोजीशन। प्यारे बच्चे, वो प्याला आपके डिफैक्टो पोजीशन में है और मेरे डिजोर पोजीशन में है। मैंने डिनर सर्व किया सिल्वर प्लेट्स में, डिनर सर्व किया, ठीक है। आप प्लेट, सिल्वर प्लेट्स आपके हाथ में, आप खाना खा रहे हैं। वो प्लेट्स आपके डिफेक्टो पोजीशन में है और मेरे डिजोर पोजीशन में है। डिजोर पोजीशन विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर दी डिफेक्टो पोजीशन। तो अब अगर ये प्याला लेकर आप जाते हैं तो थेफ्ट होगा, क्योंकि दैट वाज इन माय डिजोर पोजीशन। देयर इज अ टू टाइप ऑफ पोजीशन। ठीक है ना? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? रीड सेक्शन illustration D2G of your Bayer Act. D2G of your Bayer Act. It will be the clear. D2G of your Bayer Act. It will be the clear. Read G. इधर देखो. A being a servant and interested with jet with A being jet servant and interested by jets with the care of jets plate. मेरा सर्वेंट है, उसको प्लेट इंटरेस्ट करी और डिसऑनेस्टली वो लेकर भाग गया। उसने क्या किया? डिफेक्टो और डिजोर पोजीशन। प्रॉपर्टी किसको दी मैंने? थेफ्ट को, लेकिन दैट वाज द डिफेक्टो पोजीशन। एक्चुअली डिजोर पोजीशन वाज माइन। नेक्स्ट सेक्शन illustration. Jet going to a journey entrust his plate to A, the keeper of a warehouse, till Jet shall return. A carries the plate to the goldsmith and sells it. Here the plate was not in the possession. मैंने आपको प्लेट देके चला गया, प्लेट इज नॉट इन माई पोजीशन। मेरा पोजीशन खत्म। ऑफेंस थेफ्ट किसका है? अगेंस्ट दी पोजीशन। जब मेरा पोजीशन ही नहीं है तो थेफ्ट कैसा? मैं थेफ्ट नहीं किया। हाँ, दूसरा ऑफेंस कोई किया बट नॉट दी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई प्यारे बच्चे? एक सेकंड और देखो। आप एक रोड में जा रहे हैं, आपको 100 की नोट पड़ी मिली, एक गोल्ड रिंग पड़ी मिली, आपने उसको ले ली। आपने थेफ्ट किया? नहीं। क्यों? दैट वाज नॉट इन दी पोजीशन। किसी के कब्जे में वो नहीं है। फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट यू मस्ट मूव द प्रॉपर्टी फ्रॉम द आउट ऑफ द पोजीशन विदाउट द कंसेंट। एक सुंदर फटोगी रोड में घूम रहा है, किसी का नहीं है, आप उठा लाए, आपने थेफ्ट करी? नो। लेकिन आप मेरे घर से मेरा डॉगी ले गए, थेफ्ट हो गया। क्यों? आउट ऑफ द पोजीशन। जंगल से एक पैरट पकड़ लाए, नो थेफ्ट, बिकॉज देयर इज अ नो पोजीशन। मेरे घर से पैरट लेकर चले गए, दैट इज दी थेफ्ट बिकॉज आउट ऑफ दी पोजीशन। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट? देयर इज 5 इंग्रेडिएंट्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, dishonest intention. Number 2,
मूवेबल प्रॉपर्टी, और नंबर 3 आउट ऑफ द पोजेशन। अगर कोई प्रॉपर्टी इज नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनीवन, इट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट। उठा के लेके चले जाओ। मेरा है तो उनको वापस करो। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर वो अलग बात है। सर क्या कुछ भी हो जाए, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी थेफ्ट। De jure means by the law, de facto means by the fact, Vansika. By the fact that cup of tea is in your control, but by the law that is my control. Vansika, it is clear or not? Is it clear or not? First of all, I would like to explain all the ingredients. After that, I will discuss the case laws. It is clear or not? The next is moving. Next is moving or consent. Next is consent. Next is consent. Look at me. Offense theft if the offense against the possession, not against the ownership. That's why you can also commit the theft of J. Read illustration J. This is the J. इधर देखो. If A owns money to Z for repairing the watch. अभी example दिया. And Z retains the watch lawfully as a security for the debt, and A takes the watch out of that possession with the intention of depriving Z's property as a security for the debt, he commits the theft. Watch मेरी है, despite that I committed the theft. हो गया कि नहीं हो गया? एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं. Wife, clerk, they are all merely caretaker of the property. If in your absence your clerk, servant or wife delivers the property to anyone, it will amount to the theft because property is in your possession. She don't have any right to deliver it to anyone. Okay, next, what is the next ingredient? That is the without consent. अभी केसेस बताने बहुत सारे और उसके बाद पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी. नेक्स्ट इज द विदाउट consent. The next ingredient is without consent. मेरी तरफ देखो. There is a two type of consent. Listen me carefully. There is a two type of consent. Number 1, that is the implied consent. Number 2, that is the express consent. मैंने क्या कहा? There is a two type of consent. Number 1, implied consent. Number 2, express consent. Implied and express consent. Sir, can I take your phone? Yes, you can take. This is the implied consent. Express consent. We are sharing very good kind of relationship. You often used to visit my house and take my book. Basically, there is a no issue. अक्सर आते हो और लेके जाते हो. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल. There is a car outside your home. आपके पापा की कार खड़ी है. पापा आपके हैं नहीं. आपने की ली, कार में चाबी लगाई, लेकर चले गए. Is it theft? No. There is a consent that was the implied consent. आप मेरे घर आए, रोज आते हो, आपको एक बुक चाहिए थी, उस दिन मैं नहीं था, आपने कहा कोई बात नहीं सर, नहीं है, मैं बुक लेके जाता हूं, बाद में लौटा दूंगा. बुक मूवेबल प्रॉपर्टी, आउट ऑफ द पोजेशन, विदाउट माय कंसेंट. इज इट थेफ्ट? नो, because there is no dishonest intention plus there is implied consent. कोई थेफ्ट नहीं हुआ. So there is two type of consent, implied and express. Both kind of consent is admissible for this type of offense. Is it okay or not? सारे ingredient समझ में आए कि नहीं आए? Last now, the last ingredient, that is the moves. बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से. Moving is very important ingredient for the offense of theft. Moving is very important ingredient for the offense of theft. Moving is very important ingredient for the offense of theft. Explanation 2 to 4 deals with moving and taking the property. For the commission of theft, in order to taking that property, there must be moving of that property. बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना. जरूरी नहीं है कि आप उसको ले ही लें. आप मेरे घर आए, बड़े ध्यान से सुनना. सर गिव मी एग्जांपल ऑफ मूविंग, इसके बाद एक्सप्लेन करो. पहले एग्जांपल लो. आप मेरे घर आए,
यू आर माई डियर स्टूडेंट, आप मेरे घर आए, आपने कहा सर चाय पियेंगे, पिलाएंगे, मैंने कहा, पिलाऊंगा। मैंने क्या कहा? पिलाऊंगा। टेबल पे मेरी गोल्ड रिंग रखी थी, आपने सोचा अभी लेके जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। आपने वो रिंग उठाई और धीरे से उठाई और धीरे से सोफे के पीछे डाल दी। आप लेकर गए? आपने क्या किया? सोफे के पीछे डाल दी कि आज नहीं, फिर कभी जब ये भूल जाएंगे इस रिंग को, तब मैं यहां से निकाल के लेके चला जाऊंगा, तब मैं यहां से निकाल के लेके, तब मैं यहां से निकाल के लेके चला जाऊंगा। तो what you committed basically? You move that property, dear. You move that property. Or moving is sufficient to constitute the offense of theft. The moment you move that ring from the table, offense of theft was constituted because there is a no, it is not important for the permanent taking. Moving is sufficient. Because dishonestly, wrongful gain to one person or wrongful loss to one person, मुझे wrongful loss हो गया, it is enough. It is enough. It is enough. It is enough. From illustration 2 to 4. Even first movement is sufficient. जिस समय आपने मेरी वॉच मूव करी उसी समय थेफ्ट हो गया, बाद में आप लेके जाएं ना जाएं, it is not important. Illustration H makes it clear. तो moving is very very important. और मैंने क्या कहा? एक्सप्लेनेशन 2 to 4. सेक्शन पूरा याद हो गया, इलस्ट्रेशन साथ साथ बता रहा हूं, बात किसकी बची? एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, नाउ इट इज ओनली एक्सप्लेनेशन। आओ एक्सप्लेनेशन पे। बहुत सारे केसेस बताने हैं, उससे ना बाहर कुछ पूछता ही नहीं एग्जाम में। सेक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डियर स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Sir, moving but intention not theft, what is cause? Dear, it make, if there is no intention for commission of theft, dishonest intention, it will not amount to the theft. It will not amount to the theft. If you moves any property without any mens rea soria, any mens rea soria, it will be no offense. Nothing is an offense which is done without guilty mind. Principle of mens rea soria. इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंटेंशन, नो ऑफेंस। तुमसे मेरी जान चली जाए गलती से, कोई मेंस रिया नहीं है, तुमने कोई ऑफेंस नहीं किया। मेंस रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीड, लुक एट द एक्सप्लेनेशन, लुक एट द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, दैट इज वेरी इजी। इधर देखो, मैंने क्या कहा? व्हाट इज द subject matter of theft? That is the movable property. Anything attached to the earth is not subject matter of property. When it is severed from the earth, it becomes the subject matter of theft. This is the explanation 1. जब तक पेड़ पे कोई चीज खड़ी है वो चोरी नहीं हो सकती, जैसे ही आप मूव करेंगे that will be the subject matter of theft. मेरी बात समझे कि नहीं समझे? नंबर 1, explanation 1 is clear or not? एक्सप्लेनेशन 1 इज क्लियर और नॉट? नाउ एक्सप्लेनेशन 2। इधर देखो, बहुत जरूरी, ये लाइन समझ में नहीं आती है। ए मूविंग अफेक्टेड बाय सेम एक्ट व्हिच इफेक्ट्स द सेवरेंस। पेड़ खड़ा है, इट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट। जैसे ही इसको अलग किया, इट विल बिकम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट। अलग करते ही हो गया। पुष्पा मूवी देखिए, देखिए पुष्पा मूवी, हैव यू एवर वॉच? अभी कुमार की कृष्ण कीर्ति बताता हूं इसी का जवाब। अगर किसी ने चप्पल चोरी कर ली और फिर बाद में बोलता है कंफ्यूजन में हो गया, कृष्णा अगर शुरू में ही कंफ्यूजन था, चोरी मत बोलो, ये बोलो कि सर एक बंदे ने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ चप्पल उठा ली विदाउट द कंसेंट, कृष्णा इट विल अमाउंट टू द थेफ्ट, बोले चाहे वो कुछ भी। अगर फ्रॉम द बिगिनिंग उसे लगा ये तो मेरी चप्पल और पहन के चला गया, इट विल नॉट अमाउंट टू द थेफ्ट कृष्णा। और जब उसको पता लग गया ये उसकी चप्पल नहीं है और फिर भी वो रखे रहा, तो इस क्वेश्चन का आंसर इट विल अमाउंट टू द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी नॉट दी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इज इट क्लियर और नॉट कृष्णा? बोलो। यू हैव टू गो विद द 5 इंग्रेडिएंट्स, दैट्स इट। ठीक है ना? तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इज ए मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट व्हिच अफेक्ट द सेवरेंस। इधर देखो, it means moving is equal to the severance. This is a tree, this is the immovable property, it is not the subject matter of theft. The moment I cut down the tree or sever the tree, this severance is amount to the moving. हमने इसको काटा,
थेफ्ट हो गया। क्लियर और नॉट? तो जैसे ही पुष्पा सैंडल ट्री काटता है, जरूरी नहीं है कि पुष्पा लेके जाए सेवरेंस इज अमाउंट टू दी मूविंग, और मूविंग इज इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट दी थेफ्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तुम्हें अभी रुक जाओ, बस एक मिनट पॉज लो, मेरी तरफ देखो। वी आर डिस्कसिंग द थेफ्ट। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, 5 इंग्रेडिएंट्स अपनी जेब में डाल लो। डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, आउट ऑफ द पोजीशन, विदाउट कंसेंट और मूविंग। ये पांचों मिल गए, थेफ्ट हो गया। एक भी मिसिंग है, थेफ्ट नहीं हो गया। सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। नाउ इट्स टाइम फॉर द केस लॉस। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर द केस लॉस, क्योंकि अभी अपने पास जरूरी है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग फॉर द केस लॉस। वी विल डिस्कस 5 cases. How many cases? 5 cases. It is enough for your mains, it is enough for your prelims. It is enough for your mains, it is enough for your prelims. इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, इट इज हाईली प्रेडिक्टेबल. If I'll mark the 10, 5, 8 questions, you will get all the questions in your mains. This is the beauty of judicial service examination. दुनिया में ये खूबसूरती हिंदुस्तान के दूसरे किसी एग्जाम में नहीं है। जुडिशरी को कोई चीज इजी बनाती, नथिंग इज इजी इन दिस विक्ड वर्ड। रिक्शा चलाओगे ना तब भी सवारी नहीं मिलेगी, 5 रिक्शे वाले घूम रहे हैं। बट comparatively become a bank clerk is quite tough, become a judge is easy comparatively. Why? The 100%. सर व्हाट इज द, एक सेकंड रुकना बच्चे, इससे अलग बता रहा हूं। सर वुड यू प्लीज टेल मी कि कैसे इट इज इजी? मैंने कहा सुन लो, चलो एक सब्जेक्ट उठाते हैं आईपीसी नाउ, विच इज बीएनएस. ओके, देयर मस्ट बी वन क्वेश्चन फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम और स्टेजेस ऑफ क्राइम। दो में से एक पूछेगा, पूछेगा। देयर मस्ट बी वन क्वेश्चन फ्रॉम द कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। या तो कॉमन इंटेंशन पूछेगा या कॉमन ऑब्जेक्ट पूछेगा, बाकी क्वेश्चन शॉर्ट में पूछेगा। ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी से एक क्वेश्चन पूछेगा, यानी तो कल्पेबल होमिसाइड पूछेगा, मर्डर पूछेगा, रेप पूछेगा, या फिर हर्ट, ग्रीवियस हर्ट पूछेगा, किडनैपिंग, एब्डक्शन पूछेगा। यानी इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन देगा ही देगा, पक्का है। चलो, एक क्वेश्चन ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी से बनाएगा। ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी के क्वेश्चन कौन कौन से हैं? थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यही है ना, मिसअप्रोप्रिएशन। यानी कि इफ वी विल प्रिपेयर 4 टॉपिक्स, इट देयर विल बी डेफिनेटली वन क्वेश्चन, है कि नहीं? एक क्वेश्चन इनकोइट ऑफेंस से बनाएगा, मतलब अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट में से एक क्वेश्चन बनाएगा। 3 में से एक क्वेश्चन पक्का है। तो ये तुम्हें पता है कि देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम 3 टॉपिक्स। ये कहां है दूसरे एग्जाम में, है क्या? केवल 10 मंथ्स अगर दे दोगे, यू विल बी द जज। ज्यादा आगे पीछे की बात ही नहीं करता, लेकिन उन 10 मंथ्स में दूसरा कोई काम नहीं करना है। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट जॉब इन दिस वर्ल्ड। सर फिर आप क्यों नहीं बने? जब मेरी जीरो तैयारी थी, जीरो जीरो, मतलब समझते हो, जस्ट आफ्टर पासिंग द एलएलबी आई वाज गिविंग माय इंटरव्यूज फॉर द जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। दिस इज माय कन्फेशन टू ऑल ऑफ यू। व्हेन आई वाज नथिंग, I was pursuing my LLM from the University of Delhi. Just after the LLB, I know nothing about what if the mains, what if the prelims. On that particular time, I was giving the interview. This is my confession. बिना, जब तैयारी इतनी थी तब मैं इंटरव्यू दे रहा था several states के. तो on the basis of my experience, I can tell you what is the important, what is not important. Because मैं इसी लाइन से आया हूं, मतलब earlier I was preparing for the judicial service examination. So I know what is the important, what is not important, what is less important, what is very important. I understand the pattern of the examination. On the basis of my experience, I am telling it to you. If you are serious for in the legal field, within 1 year you will get the job in any extreme. Whether you will be the assistant professor through the net, you will be the law officer, you will be the prosecutor, you will be the judge, but you will get the job if you will 100% give your 11 months, 10 to 11 months for the judicial legal field. This is my experience. I'm telling it to when I was nothing, I was giving the interview. So this is the confession. Because of the predictability, I know they will ask this type of questions. Anyways, now we are going to discuss some case laws. Okay? Today we are going to discuss 5 cases.
जहां तक चल पाएंगे चलेंगे, टाइम हो जाएगा बिकॉज आई हैव अ शेड्यूल्ड क्लास, दूसरी मेरे को क्लास लेनी है, तो वहां तक चल पाएंगे तो ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट केस है, के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। विच केस? के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ Rajasthan. After that, I will tell you how to write the answer in your mains. K N Mehra versus state of Rajasthan. Year of the case is 1957. We will discuss this case. Number 2. The next case is Pyare Lal Bhargava versus state of Rajasthan. Pyare Lal Bhargava versus state of Rajasthan. Number 2. Number 3, या बोलते भी जा, नंबर 3, that is the अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आया केस के पहले, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दैट इज द ईयर 1964। द नेक्स्ट केस इज शेखर वर्सेस अरुमुघम। शेखर वर्सेस अरुमुघम, देयर इज अ 5 केसेस, ठीक है। 1999 का ये केस है। नंबर 1 एक केस और यहां लिख लो, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस। और इन केसेस के बाद कुछ